Namaste Gurukulians. How are you dear students? Hope you will be fine. I am Subhas. Today we will study class 11th accountancy. As you know that chapter 5 journal is going on. So we will continue the same chapter. It is the fourth video, part 4 of this chapter journal. So we will solve some more numericals. Okay. See, open the book now. This is page number 9.61, question number 6, exercise question number 6. Enter the following transactions in the journal of Maruti Nandan Stores. So first prepare the format. Write on the top, journal of Maruti Nandan Stores. Prepare the columns, first for date, second particulars, third ledger folio, fourth and fifth for amount, debit and credit. Date is 2017 January 10. 2017 Jan 10. Purchase goods from Ghanshyam of the list price of rupees 50,000 at 15% trade discount. So trade discount we do not record, we just deduct from the invoice or bill. First of all, I want to tell you about something more relating to discount. What is discount? Discount is a rebate allowed by the seller to the buyer. You can say it allowance also, छूट है. जब seller buyer के लिए कुछ price कम कर देता है, that is called as discount. And discount is of two types. First is trade discount, and second is cash discount. Trade discount is allowed at the time of sales. It is allowed to increase the sales. And it is never recorded in books. We just deduct from the invoice. मान लीजिए 10,000 का goods 20% discount पर खरीदा तो 2,000 लेस कर दो. 8,000 is the purchase. Second is cash discount. Cash discount is allowed at the time of getting payment. When you are receiving payment, you allow some more discount. That is called as cash discount. The main objective of cash discount is to get payment on time, and it is always recorded. So we will open discount account. If it is allowed, discount allowed account. If we receive discount at the time of making payment, so we will open discount received account. So here trade discount is given, so it will not be recorded. We only deduct from the invoice. See, goods purchased from Ghanshyam. Entries: purchase account debit to Ghanshyam. Ghanshyam is giver, personal account, credit the giver. Amount 50,000 minus 15%. So 15% of 50,000 is 7,500. Remaining amount is 42,500. So we will not write narration now. You will write right here, goods purchased at 15% trade discount. Then January 13. Return goods to Ghanshyam of the list price of rupees 2,000. 2,000 की list price का goods Ghanshyam को return कर दिया. तो again we will deduct trade discount. अब जो 2000 की लिस्ट प्राइस है, इस पर 15% ट्रेड डिस्काउंट है, दैट इज 300. तो माइनस 300 कितना गुड्स रिटर्न हुआ? 1700. ओके,
तो घनश्याम इज रिसीवर नाउ, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट, घनश्याम डेबिट 1700. We will open purchase return account. When goods were purchased, we debited purchase account. Now goods worth rupees 1700 were returned to Ghanshyam. We will open purchase return account. To purchase return account. It is a nominal account. जब वो खरीदा था तो परचेज एक्सपेंस था, अब वापस कर दिया, नो नीड टू पे मनी, वो पैसा बच गया हमारा. यू कैन से इट इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स नॉमिनल अकाउंट्स में. तो घनश्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न 1700. राइट द नरेशन, गुड्स रिटर्न टू घनश्याम. ओके, नेक्स्ट. ऑन 15th पेड कैश टू घनश्याम 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. अब उसके अकाउंट की फुल सेटलमेंट कर दी, कुछ लेना देना बाकी नहीं है, तो 40,000 पे करे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो हाउ मच अमाउंट इज टू बी पेड टू घनश्याम. गुड्स खरीदा 42,500, इसमें से रिटर्न कर दिया 1700. 40,800 पे करने थे, 40,000 पे कर दिए, फुल सेटलमेंट होगी, इसका मतलब 800 रुपये हमें डिस्काउंट मिल गई. इट विल बी इनकम फॉर अस. तो पास एंट्री, डेट इज 15. घनश्याम इज रिसीवर नाउ, डेबिट द रिसीवर घनश्याम, जितना अमाउंट पे करना 40,800. ओके, कैश इज पेड टू हिम 40,000 टू कैश. इट इज रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो जो 800 रुपये कम पे करे हैं वो हमें डिस्काउंट मिल गई. इट इज इनकम फॉर अस, तो क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. राइट द नरेशन, कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. ओके, नेक्स्ट. ऑन 20th purchase goods from Raghu of the list price of 60,000 at 10% trade discount. ये भी फर्स्ट एंट्री की तरह सेम है. गुड्स खरीदा है 20th को, जनवरी 20. किससे खरीदा? रघु से. एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु. अमाउंट इज 60,000, डिडक्ट 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो 10% ऑफ 60,000 इज 6,000, डिडक्ट करो, रिमेनिंग अमाउंट इज 54,000. राइट द नरेशन, गुड्स परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. नेक्स्ट, ऑन 22nd रिटर्न गुड्स टू रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 5,000. 5,000 की लिस्ट प्राइस का गुड्स रघु को रिटर्न कर दिया. अगेन वी विल डिडक्ट ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि जब खरीदा था ट्रेड डिस्काउंट लेस करी थी, अब वापस कर दिया तो अब भी लेस करेंगे. तो 10% ऑफ 5,000 इज 500, रिमेनिंग अमाउंट इज 4,500. एंट्री इज लाइक दिस, रघु डेबिट टू परचेज रिटर्न. रघु डेबिट टू परचेज रिटर्न 4,500. Okay, write the narration, goods returned to Raghu. Now on 25th cash paid to Raghu 49,000 in full settlement of his account. भी 49,000 पे करे फुल सेटलमेंट में. कितने का खरीदा था? 54,000. इसमें से 4,500 का रिटर्न कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट इज 4,900 पे करने थे. 49 में फुल सेटलमेंट होगी, तो इट मीन्स ₹500 रिसीव्ड एज डिस्काउंट, जो कम पे करे. तो डेबिट द रिसीवर रघु,
डेबिट 49,500. Whatever amount is paid to cash 49,000. 500 कम पे करे वो डिस्काउंट मिल गई हमें. इनकम है टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500. Write the narration, cash paid and discount received. Now, next question. Pass journal entries for the following transactions. अब यहाँ परचेज की एंट्री थी, इसमें सेल्स की आ गई. मोस्टली क्वेश्चन इज सेम. सी Question 7. 2017 January 6. You are required to prepare proper format. Write the headings on top. So Jan 6. Sold goods to Muskan of the list price of rupees 2 lakh at a trade discount of 20%. अब सेल किया है, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो. 2000 का 20%, 40, ये 2 लाख का 20%, 40,000, तो रिमेनिंग अमाउंट इज 1,60,000 का गुड सेल किया मुस्कान को. तो मुस्कान इज रिसीवर, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर. मुस्कान डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,60,000. Write the narration, goods sold at 20% trade discount. Now on January 8. Muskan returned goods of the list price of 5,000. 5,000 का लिस्ट प्राइस है. Again you will deduct trade discount. तो 5,000 का 20%, 1,000 डिडक्ट, तो 4,000 का गुड्स मुस्कान ने हमें रिटर्न कर दिया. तो you will open sales return account. जब गुड सेल किया था तो सेल क्रेडिट हुआ था, अब वापस आ गया, तो ये हमारे लिए लॉस है. नॉमिनल अकाउंट है, रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो 4,000 क्रेडिट द गिवर मुस्कान, पर्सनल अकाउंट 4,000. राइट द नरेशन, गुड्स रिटर्न्ड बाय मुस्कान. नाउ ऑन 15th. Received from Muskan the full payment under a cash discount of 4%. मुस्कान से जो भी पैसा लेना था सारा आ गया 4% लेस करके. तो कैश इज रिसीव्ड, यू विल डेबिट कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट. सम डिस्काउंट इज अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर. अब कितना पैसा लेना था मुस्कान से, 160 का गुड सेल किया था, 4,000 उसने रिटर्न कर दिया, तो मुस्कान से लेना था 1,56,000. अब इस 1,56,000 में से हमें रिसीव हुआ है 4% डिस्काउंट लेस करके. तो कैलकुलेट 4% ऑफ दिस. 0, 4, 2, 20, 2, 60 to 40. तो ये तो हमने डिस्काउंट अलाउ कर दी. 60 to 40. रिमेनिंग अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश. तो 156 में से लेस कर दो, दैट इज 769,441. तो 1,49,760. दिस इज द अमाउंट रिसीव्ड. कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू मुस्कान. Okay. See now next question. Question number 8.
Give journal entries for the following transactions in the books of Raja Ram. तो write on the top journal of Raja Ram. March 3. Bought goods for cash, नकद खरीदा, of the list price of 80,000 at 10% trade discount and 2.5% cash discount. अब जो लिस्ट प्राइस है वो है 80,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10% ऑफ दिस इज 8,000, डिडक्ट 72,000 का खरीदा। ये ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ बिल में से लेस करते हैं। तो डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट 72,000, नकद खरीदा है तो टू कैश इज पेड, लेकिन सारा कैश पे नहीं किया है, कुछ कैश डिस्काउंट भी मिली है 2.5%, तो इसका 2.5% निकाल लो। 72,000 into 5/2, this is 2.5 into 1/100, that is 1800। तो कितना पे करा? 72,000 में से 1800 डिस्काउंट रिसीव हुई, तो 70,200 इज पेड इन कैश। तो टू कैश 70,200, रिमेनिंग 1800 डिस्काउंट इज रिसीव्ड, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, राइट द नरेशन। गुड्स परचेज्ड एट 10% trade discount and 2.5% cash discount. Now, next transaction, March 5. Sold goods for cash of the list price of rupees 1 lakh, नकद बेचा 1 लाख का, एट 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट कर दो, 1 लाख का 15%, 15,000 लेस करोगे तो कितना बचा? 85,000 का। ये सेल्स है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, क्रेडिट सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ओके, एंड 3% कैश डिस्काउंट। अब जो कैश डिस्काउंट है, जब आप कैश रिसीव करोगे तो 3% लेस करके रिसीव करोगे, तो 3% ऑफ 85,000 into 3/100, that is 0.52550. So this is the discount allowed, remaining cash will received. So debit cash account, debit discount allowed, account debit to sales. So discount allows it is 2550. तो रिमेनिंग कैश विल बी रिसीव्ड, तो 85,000 में से ये लेस कर दो आप, 450 to 80 to 450, तो दिस कैश विल बी रिसीव्ड। राइट द नरेशन। गुड सोल्ड एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। Okay, next, on 6th, March 6, sold goods to Nagpal of the list price of 50,000 at 20% trade discount. तो ये क्रेडिट सेल है, क्योंकि नेम इज गिवन, कैश वर्ड इज नॉट यूज्ड। तो नागपाल को सेल किया, एंट्रीज नागपाल डेबिट टू सेल्स। अमाउंट इज 50,000 में से 20%, 10,000 लेस कर दो, 40,000। नाउ नेक्स्ट, नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स ऑन 8th। भाई 1/4 रिटर्न किया है, ये
ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद है तो इसका 1/4 ले लो 10,000, या जो 50,000 का था उसका 10% 1/4 लेके फिर उसमें से 10% लेस कर दो। तो डायरेक्ट बेटर यही है कि अब इसका 1/4 ले लो। तो सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड सेल हुआ था तो क्रेडिट किया था, वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न। ये लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। 1/4 ऑफ दिस 10,000 किससे गुड्स वापस आया? नागपाल। पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर टू नागपाल 10,000। राइट द नरेशन, गुड्स रिटर्न फ्रॉम नागपाल। नाउ ऑन 10th, नागपाल सेटल द अकाउंट बाई पेइंग ए कैश अंडर डिस्काउंट ऑफ 5%। अब 5% लेस करके नागपाल ने बाकी पैसा हमें वापस कर दिया। तो कैश इज रिसीव्ड, डेबिट कैश अकाउंट। सम डिस्काउंट इज अलाउड टू नागपाल, डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। टू नागपाल। पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर। अब नागपाल से कितना पैसा लेना था? 40,000 का उसको सेल करा, 10,000 उसने रिटर्न कर दिया, 30,000 लेना था, सारे पैसे आगे नागपाल को क्रेडिट करो 30,000 से। अब 30,000 में से जो कैश रिसीव हुआ वो 5% लेस करके है, तो 5% ऑफ दिस 30,000 इज 1,500, तो वो हमने डिस्काउंट अलाउ कर दी। रिमेनिंग 28,500 कैश इज रिसीव्ड। ओके, राइट द नरेशन। कैश रिसीव्ड फ्रॉम नागपाल एंड डिस्काउंट अलाउड 5%। ठीक है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्टली द transaction in next question are similar. We have discussed all these entries. Question number 9, pass journal entries in the books of Raghunath brothers from the following transactions. तो जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है ये मैं करवा दूं आपको। रघुनाथ ब्रदर्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। तो जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग में सबको डेबिट कर दो, जो भी लगाया वो कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो। कैश आया बिजनेस में 80,000 तो डेबिट कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट 80,000। गुड्स के लिए या तो आप स्टॉक अकाउंट ओपन करो या फिर परचेज अकाउंट। जब हम परचेज ओपन कर रखें तो परचेज ही ले लो, परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 एंड फर्नीचर इज ₹20,000, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैपिटल। जो भी बिजनेस में मनी इन्वेस्ट किया है किसी भी फॉर्म में वो कैपिटल है, सो दैट इज टोटल करिए 1,40,000 कैपिटल। राइट द नरेशन, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। बाकी सिमिलर एंट्रीज हैं, गुड्स, ये सोल्ड गुड्स टू नंदलाल, रिटर्न रिसीव्ड, फुल सेटलमेंट, परचेज, ऑल वी हैव डन। सी June 20, bought a table fan for ₹8,000 for the domestic use of रघुनाथ। जब कोई भी डोमेस्टिक एक्सपेंस है ओनर का, अगर वो बिजनेस से किया है, दैट विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स, तो इसके लिए एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, बाकी ओके है सब। तो यू विल कंप्लीट द क्वेश्चंस अप टू 9। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट योर नोटबुक अप टू क्वेश्चन नंबर 9। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।